Good morning, students. In the last lectures, we are discussing chapter number 2. The chapter number 2, we are already clear the 2 points. First one is difficulties of barter system, and second one is types of money. Okay, barter system, 5 difficulties we are watching. At the same time, we are watching the types of money. In this one, 4 we are watching in the last lectures, and in the last lectures we are discussing the paper money, bank money, plastic money, electronic money, right? So paper money means what? The government of India or central government of India and central bank both are printed the currency notes, that is called paper money, right? From rupees 1 rupees coin to other coins are printed by government of India, but all types of currency notes related to 5 rupees and more than it is printed by RBI, Central Bank of India. Okay, and that are a monetary value of that kind of notes. Okay, that's we are watching. Next one we are watching, that is bank money. Bank money, first of all, you are deposit the money or currency in the bank, which is called saving, and afterwards, whenever you want, you can use them by using checkbook, by using demand draft, by using credit money. That all are called bank money. Okay. Next one, that is it is also credit instrument. It's very play important role for economic development. It is also important for a global economy. If you want to increasing your transactions, if you want to increasing your currency, it is very important to bank money. Okay. Next one is plastic money. Plastic money, we are already watching the new technology or modern technology to printed currency use, that is plastic money. The plastic money, in the plastic money we are using credit card and debit card specially. Okay. uh, Next innovations we are watching, that is smart card also. Okay, which is smart transactions, and later half we are watching the electronic money. The electronic money, especially it's called e-money. It is decided your monetary value of your money that transfer directly electronically on your account, like mobile phone, tablets, smart card, computer, whatever you are using, like Google Pay, Paytm, Amazon Pay, that's all are called electronic money because it is directly transferred to your account. Okay. And central bank is using or helping to you to transactions by purchasing and selling all goods and services by using this money or credit facilities. It is also called digital wallet. Okay, they are directly transfer the money in your account. Okay. नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ मनीज. अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, आज के लेक्चर्स में पैसों की क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ मनी. फर्स्ट वन इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. Okay, the first quality is generally acceptability. Okay, before it we are watching the commodity money. Okay, animal money. Animal money, it is not easily divided. Then commodity money, it's a perishable. Then we are watching metallic coin, which is a scare in natures. ये natures में बहुत कम है. तो हर एक मनी के प्रॉब्लम्स हमने देखे, राइट. तो लेकिन जो पैसा है या करेंसी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या मनी का सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा क्वालिटीज हम बोल सकते हैं कि उनको सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. हर एक पर्सन उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, उसके लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता. ओके. अगर आपको 5 की नोट मिली, 10 की नोट मिली, कहीं पे भी पड़ी हुई मिली, कहीं आपको ख़राब नोट मिली, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो. ओके. इट्स अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. और ये सिर्फ आपकी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्ट किया जाता है कि आपकी करेंसी को. ओके.
एनिमल मनी को करेंट ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कम्युनिटी मनी को नहीं, मेटेलिक कॉइन को नहीं, राइट। लेकिन बाकी जो करेंसी नोट्स है या बाकी जो प्रिंटेड मनी है उनको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ओके। So the first problem, first quality we are discussing, general acceptability. All the peoples, all the persons, all the countries are acceptable our currency. All the transactions by selling and purchasing all the goods and commodities are easily accessible by using our currency. So that is quality of money. Second one, divisible. अभी डिविजिबिलिटी का मतलब आपको समझ में आया होगा, आप मनी को डिविजिबल कर सकते हो स्मॉलर डिनोमिनेशंस में, मतलब आप उसको 5 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में, ओके। लेकिन आप जो वहाँ पे एनिमल्स मनी या कम्युनिटी मनीज का जो प्रॉब्लम था कि उनको आप डिविजिबल नहीं कर सकते स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन पैसों को आप छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, राइट। फ्रॉम 1 रुपीज़ करेंसी, 2 रुपीज़ करेंसी, 5, 10, 20, you have to divisible that amount, okay। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। मनी का या करेंसी का और एक फीचर है ड्यूरेबिलिटी, ओके। अगर हमने कॉइन्स देखे तो वो स्केयर है इन द नेचर्स में, राइट। उसके बाद हमने एनिमल्स मनी देखा तो वो पेरिशेबल गुड्स है, कम्युनिटीज़ मनी देखा तो उसमें भी प्रॉब्लम था, वो पेरिशेबल गुड्स थी, ओके। और मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होता था। लेकिन मनी, करेंसी, नोट्स या कॉइन्स ये आप बार बार रिपीट करके इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए वो क्या है, ड्यूरेबल है। आप सालों साल उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका नोट खराब भी हो गया तो आप बैंक को रिटर्न करके बैंक आपको न्यू नोट अवेलेबल करके दे सकती है। मीन्स वो ड्यूरेबल है और एक्चुअली नोट कोई फाड़ता भी नहीं है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। सो ये क्वालिटीज़ है मनी की, वो ड्यूरेबल भी है, ओके। नेक्स्ट है कॉग्नाइजिबिलिटी। कॉग्नाइजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मनी इजीली रिकॉग्नाइज, ओके। अभी जो एनिमल्स है, कम्युनिटीज मनी है या बाकी जो हमने मेटेलिक कॉइन देके, मेटेलिक कॉइन देके, मेटेलिक मनी, इनमें प्रॉब्लम क्या था कि कई बार जो राजा या जो राजा का राज वहाँ पे था वो राजा उसका सील उसके ऊपर लगा देता था या उसका फोटोज उसके ऊपर लगा देता था। तो कॉमन पर्सन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इलिटरेट है, उनको ये सब करेंसी समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी जो मनीज आपके पास अवेलेबल है ये तुरंत रिकॉग्नाइज होती है, हर एक को तुरंत समझ में आती है। कोई भी अनपढ़ हो, गवार हो, उसको भी समझ में आती है। भले कोई पर्सन अगर उसको आंखों से दिखता नहीं हो, ब्लाइंड हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, मेंटली हैंडीकैप हो, तो भी उसको करेंसी नोट समझ में आता है, ओके। क्योंकि वो इजीली रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि हर एक नोट अलग अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसके पेपर्स अलग है, उसके ऊपर कलर अलग है, उसके ऊपर प्रिंटेड पिक्चर्स अलग है, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज होता है, ओके। हर एक नोट की कुछ डिस्टिंक्शंस मार्क है, हर एक नोट के ऊपर कुछ लिखा है। आप हर एक नोट निकाल के सामने रखो आपके सामने, हर एक नोट के ऊपर पिक्चर्स अलग है, हर एक नोट के ऊपर लैंग्वेज अलग है, हर एक नोट के ऊपर कलर अलग है। तो इन सब से पीपल्स को ईजिली वो रिकग्नाइज होता है, और कोई भी पर्सन भले वो इलिटरेट भी हो तो भी वो क्या नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता, ओके। ही इज नॉट कंफ्यूज। नेक्स्ट वन इज पोर्टेबिलिटी। अभी क्या होता है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इससे पहले जो आपने देखा करेंसी नोट्स, दैट इज एनिमल मनी, कम्युनिटी मनी या मेटेलिक कॉइन या मेटेलिक मनी, ये सारे ये जो पैसे हैं इनको आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके नहीं जा सकते, ओके। तो भैंस को कितना चलाओगे, अगर भैंस को आपको लेके जाना है, राइट। बैल को कितना चलाओगे, काउज को, शिप कितना चलाओगे, ओके। आप एक जगह से दूसरी जगह पर उसको लेके नहीं जा सकते, ओके। ये बहुत महंगा भी होता है और इनकन्वीनियंट होता है, लोगों को इजीली पॉसिबल नहीं होता है कि अगर काउज है, अगर आप पैसों के लिए, करेंसी के लिए काउज का इस्तेमाल कर रहे हो तो काउ को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाओगे, ईजिली भी नहीं है और इनकन्वीनियंट है। लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है या करेंसी ऐसी चीज़ है कि वो आप इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ओके। पोर्टेबिलिटी है उसमें, नोट आर इजीली पोर्टेबल, आप कहीं पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो। 6 पॉइंट है होमोजिनिटी। पैसों का और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो होमोजिनिटी है। होमोजिनिटी यानी हर एक नोट पर्टिकुलर नोट है, उसकी आइडेंटिटी पर्टिकुलर है, हर एक नोट की एक
अलग आइडेंटिटी है, हर एक नोट का कलर अलग है, उसके शेप अलग है, उसके अंदर की पिक्चर्स अलग है। तो हर एक नोट ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस यानी वो अकेली ही है, उसकी तरह सेम नोट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हर एक करेंसी की क्या है, एक होमोजिनिटी है। ओके, उसमें कुछ आइडेंटिकल फीचर्स है। आप नोट सामने रखो सारे, फिर आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। अभी पैसे जब आप करेंसी लेके जाते हो तो करेंसी को क्या है, स्टेबल वैल्यू है। ओके, आपकी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी आपकी जो आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जितना पैसा दोगे उतना आपको वो चीज़ें मिलेगी, राइट। तो ये स्टेबिलिटी है मनी को। ओके, सो क्वालिटीज़ पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स।